اس وقت ہم سوار کے اندر موجود ہیں۔ سوار میں مولانا مرتضیٰ صاحب کی شادی 20 فروری کو ہوئی تھی۔ ترک برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور ترک برادری میں ہمارے علاقے میں بڑی مانگ ہوتی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے بہت پیسہ مانگا جاتا ہے، بڑی بھاری بھرکم شادیاں ہوتی ہیں اور لڑکی والوں کو ایک طریقے سے لوٹا جاتا ہے۔ لیکن ان کی جو شادی ہوئی ہے نا، جب سے رشتہ طے ہوا ہے اب تک لڑکی والوں کی طرف سے 1 روپیہ خرچ نہیں کرایا گیا ہے، یعنی ایک بالکل سادگی کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ دہیز کے اندر 1 روپیہ حضرت نے نہیں لیا ہے اور بارات میں کل 8 آدمی گئے تھے اور چھواروں پر نکاح ہوا ہے، کوئی کھانا وغیرہ لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہوا۔ مولانا مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے۔ جی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں قوم کو آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بس شاکر بھائی آپ کے مادھیم سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ میرے تمام احباب ہیں، استاد محترم تشریف فرما ہیں۔ آج جو فتنے ہیں وہ آپ کے ہمارے سب کے سامنے ہیں۔ ارتداد کا بیٹیاں شکار ہو رہی ہیں اور ان کی عمریں اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے گھر پر بڑھ رہی ہیں۔ اسی کے تحت میں نے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت اس میرے قدم کو، اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میرے یہ تمام احباب ہیں، یہ تمام گواہ ہیں، مفتی طیب رضا اظہری صاحب قبلہ، نقیب ہندوستان بڑے بھائی محمد شعیب رضا رامپوری صاحب قبلہ ہیں، استاد محترم مولانا عبدالقدیر صاحب قبلہ، ان سے بھی آپ کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں پر شہنائی میرج ہال میں موجود ہیں اور جی یہ جو سوار تحصیل میں ہے اور یہاں پر سب علماء کرام موجود ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ آج ہم حضرت حافظ و قاری مولانا مرتضیٰ رضوی صاحب کے ولیمے میں یہاں پر ہم سب لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ اور سب سے اس شادی اور اس نکاح کی سب سے بڑی خصوصی چیز یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اور مال کے لالچ اور ہوس کے شکار لوگوں کا جو زمانہ آج کے دور میں ہے، آج کے اس دور میں انہوں نے بڑی ایک سنت کو زندہ کیا ہے اور ایک بڑی قربانی جو ہے انہوں نے پیش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آج جو جہیز جیسی بری رسم ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے عملی جامہ پہنایا ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے بالکل سادہ نکاح انہوں نے جو ہے کیا ہے، جو 20 فروری 2 روز جو ہے 3 روز قبل جو ہے انجام پایا۔ یہ رائے کے امرتے کے رہنے والے ہیں، تو تحصیل سوار میں جو پڑتا ہے، اور ان کا نکاح جو ہے 20 فروری کو بعد نماز مغرب منعقد ہوا تھا مکرم پور میں، جو بھی یہ سوار کے پاس ہے۔ تو انہوں نے بڑی قربانی پیش کی ہے ماشاءاللہ، بغیر جہیز کے انہوں نے سادہ نکاح کیا ہے، اور صرف بارات میں بھی صرف تقریباً 7 یا 8 لوگ جو ہے بارات میں یہ نکاح کے طور پر جو ہے نکاح کے لیے گئے تھے۔ اللہ پاک ان کے اس قدم کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور یقیناً جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت امید ہے کہ اللہ اس قدم کو قبول فرمائے گا۔ اور نیز سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اور اس کا مفہوم پاک ہے کہ جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو سنت نبویہ ہے اور سرکار کا جو فرمان ہے کہ خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہتر نکاح وہ ہے، سب سے افضل نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو، اور اس کی برکتیں بھی جو قرآن عظیم میں احادیث میں جو نکاح کی برکتیں شمار کرائی گئی ہیں، جو برکتیں بتائی گئی ہیں، یقیناً وہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب کہ نکاح کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے، نہ کہ مال کی خواہش کے لیے کیا جائے۔ یقیناً آج ہم معاشرے میں جو دیکھ رہے ہیں، جو نکاح ہو رہے ہیں، اکثر اس میں مال کی کوئی نہ خواہش، دولت کی خواہش کی بنا پر نکاح ہو رہے ہیں، اور سرکار کا جو فرمان ہے کہ جو ہے نکاح کو آسان بنایا جائے، آسان طریقے سے، آج اس سنت کو جو ہے چھوڑا جا رہا ہے۔ تو ایسے اس ماحول میں جناب حافظ و قاری عزیزم حضرت مولانا مرتضیٰ رضوی صاحب نے اس سنت کو زندہ کیا ہے۔ اللہ پاک ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ نیز حدیث پاک ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں پر بنتی ہے اس معاشرے میں سدھار پیدا کرنا، وہیں ہر
जो है आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है, अवाम अहले सुन्नत और सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस जहेज जैसी बुरी रस्म का इस मुआशरे से हमारे खात्मा हो, ताकि हमारी मुस्लिम बच्चियां जो आज फितने इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, अपने मजहब इस्लाम को छोड़कर गैरों का मजहब अपना रही हैं, जिस मजहब ने उन्हें जो है जिंदगी अता फरमाई, सिर्फ इन जैसी बुरी रस्मों की बुनियाद पर आज हमारी मुस्लिम बहनें ख़वातीन इस्लाम हमारे मजहब इस्लाम को छोड़कर जो है दूर हो रही हैं। तो जहाँ ये उलमाए किराम की भी जिम्मेदारी है, तो उसी पर नीज़ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल विदअउ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फितने जाहिर होने लगें और बिदअतें जाहिर होने लगें, ये बिदअतें ही हैं बुरी रस्में जहेज की, तो फलयुज़हिरिल आलिमु इल्महु, तो सरकार फरमाते हैं आलिम पर ज़रूरी है कि अपना इल्म का इजहार करे, और इल्म का इजहार ये अक़वाल से ही नहीं होगा सिर्फ, बल्कि अमल से भी होगा। जहाँ अक़वाल से इल्म का इजहार होगा, वहीं आज ज़रूरत है उलमाए किराम भी इस मैदान में आगे आएँ, और हमारे नौजवान अहले सुन्नत नौजवान भी जो है मैदान में आगे आएँ और इस जहेज जैसी बुरी रस्म का खात्मा करें, ताकि हमारी मुस्लिम बच्चियाँ जो आज जहेज की वजह से, पैसे गरीब गुर्बत की वजह से जो है घरों में बैठी हुई हैं, और कुछ शैतानी जो है नफ्स का जो शिकार होकर शैतान के बहकावे में आकर जो है अपने मजहब इस्लाम को छोड़ रही हैं, गैरों के साथ जा रही हैं, तो यकीन माने कहीं न कहीं कसूरवार हमारा मुस्लिम समाज भी है, ये नौजवान भी हैं जो पैसे की ख्वाहिश जिनके दिलों में घर कर गई है, जिसकी वजह से जो है हमारी मुस्लिम बच्चियां जो है आज बेहरा रवी का शिकार हो रही हैं। और बहुत से इसके फसादात हैं जहां जो है ये मुस्लिम बच्चियां हमारी बेहरा रवी का इस बुरी रस्म की वजह से शिकार हो रही हैं, वहीं जो है निकाह की बरकतों से आज हमारा समाज महरूम होता नजर आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि निकाह की बरकतें हमें हासिल हों, मुआशरे में सुधार आए हमें, तो हमें ज़रूरी है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान पर अमल करें, निकाह को आसान बनाएं। मैं तमाम कौम मुस्लिम और खुसूसन नौजवान से गुजारिश करूँगा कि इसमें हम सब का साथ दें, जहाँ भी हों जहीं भी हों, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर जो है सादा निकाह करें, निकाह को आसान बनाएं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं दुआ गो हूँ कि जनाब अजीज़ गिरामी हज़रत अल्लाह मौलाना मुर्तज़ा रज़वी साहब ने जो एक कदम उठाया है अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, अल्लाह पाक इनके इस अमल को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए, और दीन दुनिया में भी और आखिरत में भी इनके इस अमल का इन्हें बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालो, आप हजरात को वही काम करना चाहिए जिस पर आप अमल कर सको। तो सबसे बेहतर हमारे अजीज़ गिरामी मौलाना मुर्तज़ा साहिब रज़वी ने ये बेहतरीन कदम उठाया, और उन्होंने बिना जहेज़ के इस शादी को अंजाम तक पहुंचाया। और मैं इस बात का एतराफ़ करता हूं, और मैं गवाह हूं, मैं विटनेस हूं इस चीज़ का कि मैं फुपेरा भाई लगता हूं, जो मोहतरमा मौलाना मुर्तज़ा साहिब के घर में निकाह हुआ है, जिनके साथ में मैं उनका फुपेरा भाई लगता हूं। और मौलाना मुर्तज़ा साहिब क़िबला ने माशाल्लाह ये बिना जहेज़ के कदम उठाया है, और बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं गवाह इस बात का हूँ कि बारात फ़कत 8 हज़रात या 7 हज़रात बारात के अंदर मौजूद थे, और मस्जिद जैसी मुतबर्रक और बाबरकत जगह में इनका निकाह मुनाकिद हुआ। एक महफिल पाक का इनेकाद भी हुआ था। तमाम तर शरई उसूल और ज़वाबित के तहत इस निकाह का इनेकाद किया गया था, और कभी पूरा इस प्रोसेस के अंदर शादी के कभी मौलाना मुर्तज़ा साहिब रज़वी की जानिब से किसी भी चीज़ का मुतालबा नहीं किया गया। आज तक किसी भी चीज़ का मुतालबा नहीं किया गया है। तो ये कौम मुस्लिम के दरमियान ऐसी मुर्दा सुन्नत को ज़िंदा करना ये बहुत मुश्किल होता है। ये एक तरह का जिहाद है। ये मौलाना मुर्तज़ा साहिब रज़वी बड़े मुबारकबादी के लायक हैं कि उन्होंने इस तरफ कदम उठाया, चूँकि अल्लाह पाक ने ये फरमा दिया था, ए ईमान वालो, करो वो जो कहते हो वही करो। तो मौलाना मुर्तज़ा साहिब क़िबला बहुत माशाल्लाह नेशनल मुक़र्रिर हैं, और बहुत बेहतरीन पैगामात कौम मुस्लिम की जानिब रवाना फरमाते रहते हैं। तो इन्होंने जो ये स्टेज की लाइन में कहते हैं, उसके अपनी
अपनी रियल लाइफ में इन्होंने वो करके दिखाया है। यानी कि इन्होंने जहाँ जहेज़ का मुतालबा बिल्कुल यकसर तर्क कर दिया है, और हत्ता के बारात के अंदर ऐसा होता है कि 500 या 600 तकरीबन हजरात खाना खाने के लिए आते हैं, उनका भी इन्होंने सिरे से बाइकाट कर दिया है। मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना मुर्तज़ा साहिब रज़वी को कि उन्होंने ये बेहतरीन कदम उठाया, और खुदा के वास्ते उनका ये कदम लिल्लाह था, और लिल्लाह उनका ये कदम है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें दुनिया के अंदर भी अजर अता फरमाएगा और इन्हें आखिरत के अंदर भी दोबाला अजर अता फरमाएगा। देखिए माशाल्लाह पूरी जमात उलमाए किराम की बैठी हुई है, और मौलाना मुर्तज़ा साहब के सब ये चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, और तमाम ये उलमाए किराम, कोई मुफ्ती है, कोई कारी है, कोई मौलवी है, सब पढ़े लिखों की जमात है। और ये माशाल्लाह मौलाना साहब के जो हज़रत हैं उनके उस्ताद मोहतरम हैं ये। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे शागिर्द रशीद जनाब हाफिज़ कारी मुर्तज़ा साहब को ये सुन्नत रसूल अदा करने का मौका अता फरमाया। और मैं इनको बचपन से जानता हूँ। कई बच्चे थे इनकी जमात में, उनमें सबसे बेहतरीन और होनहार हैं, बेहतर हैं, और अमली मैदान में मैंने देखा कि सबसे आगे रहे। और आज भी इन्होंने ये करके दिखाया जो कुरान पाक में है, बिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो तुम कहते हो करते क्यों नहीं हो। जी जी जी। उसके मिस्दाक इन्होंने बेदारी की है, और ये मेरे शऊर में और इल्म में पहला कदम है जी जो जनाब हमारे शागिर्द रशीद जनाब कारी मुर्तज़ा साहब ने उठाया है। बड़ा बेहतरीन कदम है, और सब कुछ बता चुके हैं जहेज़ की लानत पर। मेरा भी वही कौल है और मैं भी उसी का कायल हूँ। लिहाजा 2-3 चीज़ों पर और भी मेरे मुकर्रिरीन और खुतबा इस पर गौर करें। जैसे जहेज़ की लानत के साथ साथ इन्विटेशन कार्ड की इतनी अहमियत पैदा कर दी है, इतनी अहमियत पैदा कर दी है कि इंसान जिसके यहाँ शादी है वही बांटे भी, वही जाए भी, जाने कितने हादसात हो जाते हैं। जिस तरह से हम न्योताबाजी करते हैं, लेन देन करते हैं, उसकी कापी रखते हैं, क्या हम एक कापी ऐसी नहीं बना सकते कि हम फलां जगह की शादी है भाई लिख लो, फ़ोन पे माने। मौत से लेकर खुशी, गमी, पैदाइश, अकीक़ा वगैरह की हर दावत मानते हैं, हर सुन्नत वो मान लेते हैं, ऐलान और ख़बर। क्या शादी की खबर और तारीख़ नहीं कर सकते? जी जी। ये चीज़ भी ख़त्म होना चाहिए, और ये बेहतरीन कदम है, दूसरों के लिए सबक है, पैगाम है, हर बरादरी के लिए, एक बरादरी के लिए नहीं है ये, हर बरादरी के लिए। थोड़े थोड़े कीड़े सभी जगह हैं, हर जगह मरना चाहिए। मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह खुशी हुई हज़रत मौलाना मुर्तज़ा साहब के इस इक़दाम से, और ये कदम जो है कौम के लिए लायक तक़लीद है, नौजवानों के लिए ख़ुसूसी तौर पर, कि नौजवान जो है जब किसी काम का बेड़ा उठा लेते हैं तो उसको पार लगा कर छोड़ते हैं। यकीनन इसलिए ये अव्वलीन में है, और इसके अल्लाह ताला की जानिब से ये अजर अज़ीम के भी मुस्तहिक़ हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि माशरे से जहेज़ की लानत को तो ख़त्म किया जाए, लेकिन बेटियों को विरासत में भी ज़रूर हिस्सा दिया जाए। लोगों ने विरासत से बेटियों को महरूम कर दिया है, उनका हक़ है, वो फ़र्ज़ी हक़ है, और कुरान ने उसको बयान किया है वाज़ेह तौर पर। माशरे में उस चीज़ का चलन भी नहीं है। मैं इसी बात पर जो है अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा पैगाम दिया है, बेटियों को विरासत के अंदर हिस्सा मिलना चाहिए, पैगाम दे रहे थे हमारे हज़रत मौलाना साहब। और देखिए दहेज़ को लात मारते हुए मौलाना मुर्तज़ा साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। कौम मुस्लिम के अंदर शादियों के अंदर जितनी खुराफातें बढ़ती जा रही हैं, जितने रस्म व रिवाज बढ़ते जा रहे हैं, मंगनी से लेकर निकाह तक बेशुमार फजूल खर्चियाँ और फजूल रस्में निकाह के अंदर हो रही हैं, उन तमाम को लात मारा है मौलाना मुर्तज़ा साहब ने, और सुन्नत तरीके से सादगी के साथ निकाह किया है। हम तमाम उलमाए किराम इनको मुबारकबाद पेश करने के लिए यहाँ हाजिर हुए थे। ये तमाम उलमाए किराम की जमात बैठी हुई है, चारों तरफ उलमा दिखाई दे रहे हैं आपको। आज वलीमा था मौलाना मुर्तज़ा साहब का, और इन सबको इनवाइट किया गया था उलमाए किराम को। हज़रत स्टेज पर तकरीर करते हैं, नसीहत करते हैं लोगों को,
تو جو یہ نصیحت کرتے ہیں آج اس پر انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جتنے بھی ناظرین ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ خود بھی عمل کریں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر لوگ عمل کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کا بھائی محمد شاکر رضا، دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔